It's a day after the great Indian rescue at the Silkyara tunnel. All of the tunnel workers are out. They're currently under medical scrutiny in Dehradun. And in just hours from now, each one of those braves will be reunited with their anxious families. I'm Shiv. I am so happy to tell you that India Today, the channel that you chose to track this story, has been the most watched, most tracked and most viewed. And the reason I say that is because it affirms and validates our decision to make this great Indian rescue story number one. It's a reflection of what you have chosen as the news that matters. I'm Shiv, this is 5 Live, these are the headlines. The day after the rescue, tunnel workers airlifted to the All India Institute of Medical Sciences in Rishikesh for 48-hour observation. 1 lakh rupee compensation handed over to all 41 men rescued. Uttarakhand Chief Minister Dhami speaks exclusively and first to India Today, hails Prime Minister Modi's guidance for the great tunnel rescue, says all tunnel construction will be reviewed and inspected. Home Minister Amit Shah hurls favours for questions taunt at Trinamool MP Mahua Maitra, says the Trinamool MP has destroyed Parliament sanctity. Days after Prime Minister Modi's sortie in a Tejas fighter, big Make in India push by the Ministry of Defence, deal to purchase 97 more Tejas Mark 1A aircraft on the table. Rahul Dravid to remain Team India's head coach as BCCI announced contract extension. Dravid to continue with same support staff. Let their names be said out loud so they enter the national consciousness, and may they never ever, viewer, be forgotten. Munna Qureshi, Nasir, Naseem, Vakil Hassan, Irshad Ansari, Monu Kumar, Devendra Kumar, Rashid Ansari. The rat miners who risked their lives, left their anxious families and tunneled into an unforgiving mountain, creating the lifeline that finally led to the rescue of 41 trapped tunnel workers after 17 painful, agonizing and sleepless days. These are the men, and there were many others. There were over 600 men who were responsible for the overall rescue. And India salutes all of them. But today on 5 Live, I wanted to put the spotlight on those who will be forgotten possibly most easily. The men who actually did the digging, the men who got their hands down and dirty, tunneling literally like rats, and that's why they're called rat miners, to create an incredible pipeline that provided an escape route for those 41 workers. These are those men, viewer. These are those men who risked everything to do it. They knew what the risks were. They knew what the dangers were. They knew that rat mining, their profession, has become controversial, even banned in this country. But they were called upon to do a service because the entire nation was watching. The entire nation felt invested in the well-being of those 41 men trapped inside. And that's why these men, led by the Raja of rat mining, if I could give him that moniker, and you'll be meeting him live here on this show in just a very short while from now. His name is Munna Qureshi. He'll be live. I have that great privilege. But before that, India is hailing the fearless, the courageous rat miners, the heroes of the final rescue. They were the ones who finally made that breakthrough. Not for a moment am I saying that the others do not need to be credited. But today on this show, I've chosen to put the spotlight on the rat miners. Watch this. India saving 41 trapped workers in an epic Himalayan rescue. This is the moment when a team of 12 Delhi-based rat hole miners pulled out the 41 trapped workers successfully, making the nation elated, relieved and emotional.
Workers who spent 17 days in the heart of darkness took a sigh of relief. When the high-tech heavy machines failed to make any major breakthrough, human hands made India's biggest rescue mission a roaring success. It was on Monday when the 12 rat miners were pressed into the task of digging horizontally after the auger machine failed, its blades getting entangled in the debris. The last 10 to 12 meters of debris was proving too much for the sophisticated machines, but the gritty miners went where no machine had ever gone, burrowing through the obstacles in less than 24 hours. In an exclusive chat with India Today, the miners narrated the challenges inside the tunnel. में किसी ने रेस्ट नहीं किया, सबने मतलब जितना टाइम हमने उनको रेस्क्यू किया तब तक काम कंटिन्यू रहा। और आप इस चीज को हम ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी तारीफ ज्यादा कर दें, ये आप वहां से किसी से भी पूछेंगे सभी बताएंगे हमने कंटिन्यू काम किया। ये रियल है, रियलिटी है। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत था, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है उन्हें बचाना है। और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी। As the last pipe was inserted and the rat miners entered the seal cavity, the trapped workers erupted in joy and hugged them. Munna Qureshi, who was the first miner to reach the trapped men, narrated the elation all around. वहाँ पे क्लियर नहीं करते तो वहीं पे रहते, मगर वहाँ से वापस नहीं आते। और ऐसा हमें लगता नहीं था जो हम क्लियर ना कर पाए। हम 12 लोगों पे इतनी उम्मीद थी हमको, हमसे क्लियर करके हटाएंगे। और हमने करके उन्होंने बोला कोई प्रोसेस हो आपका सामान था, मैंने जो भी चाहिए होगा आपको बता देंगे। उनका बहुत सहयोग था हमारे साथ, उन्होंने किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं रखी और हम आगे बढ़ते चले गए और उनके पास पहुंच गए। उन लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। The rescuers flashed victory signs signaling their massive win, which ensured that 41 workers returned safe to their families. India hails the fearless, the courageous rat miners and the heroes of the final rescue. Bureau Report. In a moment, we'll have Munna Qureshi live with us. I'm calling him the Raja of rat miners. But what exactly did he and his band of brave rat miners actually do? There were 12 rat miners who were summoned for this job. Munna and his team were divided into 4 teams of 3 men each. 12 people divided into 4 men of 3 men each. Person 1 did the actual digging. That was Munna, cutting through the harder materials. He was right in front. The person just behind Munna Qureshi was tasked with gathering the debris and placing it on the trolley. Very, very precarious operation. And then finally, person number 3 placed the trolley in the dugout pipe shaft, which was then pulled out by workers stationed outside. So that's how rat mining actually works. It's total teamwork, and you will see when we bring in Munna Qureshi, who joins me live now from Uttarkashi in Uttarakhand, right near the tunnel where the rescue happened. You can see the tunnel behind them. Munna bhai, आपको देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी जो आपने जो काम किया, मैं ये बोल सकता हूं कि आप मानते हो कि आप एक टीम के हिस्से हो। आप सिर्फ एक आदमी हो जो एक टीम के साथ ये कार्य किया है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा मुन्ना भाई कि आपने जो किया है, एक मैसेज गया है देश को, दुनिया को, कि साहस, वीरता, निडरता क्या होता है। मेरा पहला सवाल मुन्ना भाई आपको ये है कि जब आपको बुलाया गया था इस काम के लिए, आपके मन में क्या था? आप क्या सोच रहे थे जब आपको बुलाया गया था इस काम के लिए? हमें बताया गया था भाई 41 वर्कर अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर। तो हमें वकील हसन भाई ने, जो मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने बताया
उत्तराखंड से फोन आया है, हमें तुम्हें जाना है। मैंने उसी टाइम मैंने ठीक है गाड़ी मंगाते हैं, अभी चलते हैं। हम वहाँ से पांच जनी हम वहाँ से अपने चल दिए। सवेरे 5 बजे आके यहाँ पे हम उतर गए थे। आने के बाद हमने अब रुके यहाँ पे, हम अंदर गए सवेरे 5 बजे, देखा जाके तो ओगर बंद था। बाद में इन्होंने दिन में ओगर डाला उसके अंदर, उसे इस्तेमाल करा। हमने इन्हें जब पाइप के अंदर गए थे तो हमने इनसे कहा ये सरियों में फंस जाएगा ओगर जी, और वो वैसे ही हुआ, वो फंस गया। बाद में फंसने के बाद इन्होंने कहा हमसे हम निकालते हैं उसे। तो भाई एक कटिंग करी, उसकी जो हेयर होती है उनकी कटिंग कर करके उन्हें निकाला गया। उसमें 3 दिन लगे, 72 घंटे लगे उसमें निकलने में। उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया, अब तुम लग जाओ। जब हम लगे तो इसमें 26 घंटे हमने लगाए और हमारे लड़कों ने भी, जो 12 मेंबर की टीम थी जी, 36 घंटे लगाने के बाद इसे उन्होंने लगाए थे। हमने इसे सक्सेस करने में 24 घंटों में फाइनल कर दिया था हमने। जब आपको बुलाया गया था मुन्ना भाई, आपके मन में क्या कोई दुविधा था, क्या कोई डाउट था कि ये काफी खतरनाक काम हो सकता है? आपके मन में ऐसा कोई दुविधा था जब आप चल पड़े? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसी चीज नहीं आती। इसमें डर मौत है या जिंदगी है क्या है, मैं तो सीधा चल देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें ये पता था 41 भाइयों की जिंदगी का सवाल है जी। क्योंकि मेरे हौसले और बुलंद हो गए थे जब मेरी जो टीम आई थी बोलने लगे हम करेंगे। मेरे इतने हौसले बुलंद हो गए थे बहुत। और मेरे जो वकील भाई है, जो मेरे पार्टनर हैं, उनके भी हौसले बुलंद थे और उन्होंने भी मेरे से बोला था मुन्ना इसे करके आएंगे। और मैंने भैया ठीक है हम करके आएंगे उसे, और करके ही हटेंगे। घर पे भी जब ही जाएंगे जब हम इसे फाइनल करके और लड़कों को निकाल लेंगे। तो जब आपको बुलाया गया था, आपने घर वालों को क्या बताया और घर वालों ने आपसे क्या बोला? उनके मन में भी काफी वारी होगा। मेरा बेटा हाँ, उनके मन में था ना, क्योंकि उन्हें पता है ये जो जैक पुशिंग होती है इसमें धांग भी गिर जाती है, सेटरिंग भी टूट जाती है, तो उनके दिल में भी डर रहता है। मगर मैंने उन्हें बताया, मैंने ऐसे ऐसे बातें, वो बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से काम करना, चले जाओ। मैंने अपने बेटे से भी कहा, मैंने बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम अपने 2-3 दिन अपने बड़े पापा के पास रहना। और मेरी बेटी अपनी खाला के पास रहती है। तो वो बोलने लगा ठीक है मगर आ जाना आप 2-3 दिन में। मैंने ठीक है 2-3 दिन में हम निकाल के आ जाएंगे। मुन्ना भाई, तो उसका मेरे पे फोन आया था बीच में, बोल रहा था पापा निकल गए। मेरे बेटे का फोन आया, पापा निकले नहीं निकले। मैंने बेटे देखते हैं आज हमारा काम स्टार्ट हुआ है और अल्लाह ने चाहे तो निकल जाएंगे। तो बोलने लगा पापा आप जब ही आना जब उन्हें निकाल दो और मैं इंतजार करूंगा। ये और तो हमने निकाल दिया। आज वो बोल रहे हैं अब तुम आ जाओ, अब हम रो रहे हैं। मुन्ना भाई, आपको पता है कि ये जो काम आप करते हो, रैट माइनिंग जो बोलते हो, और पहले मैं वकील भाई को भी सलाम करूंगा, वो भी आप बैठे हैं हमारे साथ अभी। वकील भाई मैं अभी एक मिनट में आपके पास आता हूं कुछ सवालों के लिए। लेकिन मुन्ना भाई, आपको पता है कि ये जो काम आपने किए हो और ये काम जो आप करते हो, रैट माइनिंग जो कहा जाता है इसको, ये एक खतरनाक चीज है, ये खतरनाक काम है जी। कितना खतरा है जब आप इस टनल में घुस गए थे और आप ये धरती को खोद रहे थे, कितना खतरा एक्चुअली था? ये एक थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। सर, जो मजदूर होता है वो खतरे नहीं देखता, वो अपने बच्चों को देखता है और अपने पेट को देखता है, फिर उसे खतरा नहीं देखता। फिर तो उसे अपने बच्चों की मायूसी दिखाई देती है। मेन मकसद ये रहता है जी। जब वो मायूस होता है ना और जब वो भूखे होते हैं उसके बच्चे, तो उसे पता पड़ता है क्या हुआ। जब आप अंदर थे, क्या यही था आपके मन में? आपके परिवार के बारे में सोच रहे थे आप? मैं सोचता हूँ मेरे 3 बच्चे हैं ना, मेरी बेटी वाइफ नहीं है जी। जब आप बाहर आए थे मुन्ना भाई, जब आप बाहर आए थे मुन्ना भाई, आपने फोन किया अपने बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया? आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? जी, मैंने उनसे कहा था बेटे मैं अब आ जाऊंगा, और अभी भी उनका फोन आया पापा आ जाइए। मैंने हाँ ठीक है बेटे आ रहा हूँ। और अब हम एक घंटे आपका इंटरव्यू होने के बाद निकल जाएंगे यहाँ से। बस कंपनी की गाड़ी का दे रहे हैं।
जब आप वो टनल में थे मुन्ना भाई, एक दो और सवाल, आखिरी दो सवाल हैं और उसके बाद हम वकील साहब से बात करेंगे। मुन्ना भाई, जब आप वो अंत में थे, लास्ट फेज में आप खोद रहे थे, रैट माइनिंग कर रहे थे, जब तक वो पूरा लाइफलाइन खुल नहीं गया और वो जो 40 लोग वहां पे मिले, तो आपके मन में क्या था? क्योंकि बाहर तो आपने देखा होगा कि कितना मीडिया प्रेशर था, सब लोग इस पे रिपोर्ट कर रहे थे, काफी दबाव भी था सरकार पर, आप लोगों पर भी। तो जब आप अंदर थे, आपके मन में क्या था कि ये काम पूरा करना है, और जब वो पूरा हो गया था आपको कैसा लगा? हमारे दिल से ही दबाव था, हम पे हमारे दिल से दबाव था, किसी और का दबाव नहीं था, हमारे दिल से ही दबाव था। हमें इसे करना चाहे हो कुछ भी जा, हमारा जुनून था एक, वो जुनून को हमें अपना पूरा बिल्कुल मकसद पे आना था और वो हम आगे। बहुत बड़ी खुशी है, मैं उनके पास गया था जो वर्कर थे अंदर 41, उन्होंने मेरे को सीने से लगाया, गले से लगाया, बहुत उन्होंने मेरे से प्यार किया और चॉकलेट भी दी और उन्होंने बहुत इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, बहुत मैं उन्हें सलाम करता हूँ। बहुत बहुत अच्छे थे वो बेचारे, आज भी अच्छे हैं वो। और ये काम आप कभी नहीं भूलेंगे मुन्ना भाई, कभी नहीं भूलेंगे आप? नहीं, ये मकसद कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारी लाइफ का पहला एक ऐसा काम है जो कभी हमें मिलता भी या नहीं मिलता, और मैं चाहता हूँ आगे से कभी ऐसा काम ना मिले, क्योंकि किसी की जिंदगी जाए जिस जगह यह है, कोई ना ऐसी जगह अटके। हम आपको सलाम करते हैं मुन्ना भाई, जो आपने मैं नहीं चाहता ऐसी जगह कोई जाके फंसे। जो काम आपने किया है, एक मैं फिर से बोलूंगा, ये ना सिर्फ देश को लेकिन पूरा दुनिया को एक मैसेज गया है कि दृढ़ता से कैसे काम करें और कैसे सफलता प्राप्त करें। वकील भाई, आप भी थे इस काम में, आप भी सुपरवाइज कर रहे थे, आप भी जुड़े थे इसमें, आपको कैसा लगा था? क्योंकि मैं फिर से ये सवाल करूंगा वकील भाई कि खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत में रैट माइनिंग एक काफी कंट्रोवर्शियल चीज माना जाता है। किस इलाकों में ये बैंड भी है, लेकिन एक रियलिटी ये है वकील भाई कि इतने बड़े मशीन्स का इस्तेमाल यूज करके अंत में रैट माइनिंग का ही यूज करना पड़ा देश को। एक्चुअली मैं इसके लिए देहरादून में अशोक जी हैं जो कि ब्रिजन रूप से हैं। हमने अभी से 2021 में उनके पास रेड माइनिंग के थ्रू 2 से 2.5 किलोमीटर काम किया था सर जी, और उन्होंने हमें यहाँ के लिए अप्रोच किया था कि हसन वहाँ पर वर्क है और वो तुम्हें करना है, मुझे तुम पे भरोसा है, इस वर्क को तुम्हें निकालना है जी। तो सर जो अशोक सोलंकी जी है, ये क्रेडिट मैं उनको देना चाहूंगा सर, जो अशोक सोलंकी जी सर, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इस काम के काबिल समझा, तो मैं यहाँ पे आया, वरना इस काम करने के लिए और भी बहुत लोग आ सकते थे। तो सर कहने का मतलब यह है, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी 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 जी, टास्क तो बहुत टफ था, लेकिन सर हमने सोचा था ये हमारे जिंदगी में आई थिंक पहला ही और लास्ट मौका ऐसा है जिसमें हम अपने आप को प्रूव करके दिखा सकते हैं और दुनिया के सामने और दिखा सकते हैं, और मुझे ये मौका किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना था सर। मुन्ना भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। दांव पे थी। जी 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 बिल्कुल, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो देश का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो आप लोगों के ऊपर है। 1-2 दिन में वो ध्यान कहीं और चला जाएगा, चुनाव भी हैं और कुछ न्यूज आ जाएगा और मीडिया भी चला जाएगा उत्तरकाशी से। अभी जो है, जो मीडिया का ध्यान जो है, देश का ध्यान जो है, आप जैसे वीर लोगों के ऊपर है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रैट माइनिंग, रैट माइनर्स, मजदूर लोग, आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि इस स्थिति में आप लोगों के वजह से इस क्राइसिस में सफलता प्राप्त हुई है और वो जो 40 लोग थे वो बाहर सुरक्षित आ गए हैं। आप अगर सरकार को कुछ बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे? मैं यही बोल सकता हूँ, मेरे भारत के जितने भी वर्कर हैं या मजदूर हैं, उनके साथ सैलरी की तरफ से कोई वो ना किया जाए जो कल को वो परेशान रहें, कल को उन्हें दिक्कतें आए, उनकी परेशानियां सही हों, जो इतनी सैलरी उन्हें दी जाए, जो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएं। जी,
ये नहीं, ऐसा होता है आजकल कंपनियां चल रही हैं जिन्हें टेंडर मिलते हैं, वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं और पैसे रोक लेते हैं। कभी उसे आधे दे दिए, कभी नहीं दिए, वो बेचारा भटकते डोल रहा है, कहीं कुछ कह ही नहीं पाता और वो वहीं तंग आ जाता है। उसकी फैमिली भी परेशान होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं इन लोगों की। तो इनके लिए मैं एम साहब से यही कहना चाहूँगा, ये सुविधा करी जाए। मेरे जितने भी वर्कर हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे वर्कर जो भी पूरे भारत के हैं जितने भी हैं, उनके साथ बहुत वो करा जाए। और आपके बारे में बताइए मुन्ना भाई, आपके बारे में जो परेशानी है आपके काम में, उसके बारे में जरा बताइए। सरकार आपको ही सुन रहा है अभी। नहीं, मेरे काम में क्या परेशानी, हमने तो जो करना था वो कर गए। अब हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बहुत खुशी है। मुझे इतनी खुशी है, मेरी इस उम्र में कभी मैंने इतना नहीं खुश हुआ हूँ जो आज मुझे खुशी है। मैं रोता नहीं हूँ, मैं कभी रोता ही नहीं, मगर इस खुशी ने मुझे रुला भी दिया। 3 बार रोया, मैं कभी नहीं रोता, मुझे इतनी खुशी है। मुन्ना भाई, आपका जो इमोशन है, जो जज्बात है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आप वो टनल आपके बिल्कुल पीछे है जहां पे आप गए थे, जहां पे आपने धरती को खोदा, पर्वत को खोदा और उन लोगों को बाहर लाया। मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चे से मिलेंगे कल परसों, जब भी आप उनसे मिलेंगे मुन्ना भाई, आप उनको क्या कहानी बताएंगे, किस डिटेल में आप बताएंगे कि क्या हुआ था वो सुरंग के अंदर? हमें भी सुनाइए। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कल ये चीज मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता। नहीं दिखाना चाहते हो, क्यों बताइए? मैं ये चीज उन्हें दिखाना नहीं चाहता, नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं बेटा इंजीनियर बने, पढ़ा लिखे। जी, माफी चाहता हूँ आपसे। मुन्ना भाई, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, आपकी दिल की बात हम समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ और बने और ये जो खतरनाक काम है वो नहीं करें, ये है बात आपकी? मैं अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहता। आप अपने बच्चे को क्या क्या बोलेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, और आपकी जो इमोशंस हैं अभी, मुन्ना भाई आप रो रहे हैं, मुझे भी रोना आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करूंगा क्योंकि कल परसों आप नहीं मिलेंगे, आप बिजी हो जाएंगे काम में, इसलिए मैं फिर से पूछूंगा आपसे कि अभी जो देश का ध्यान है, देश का जो समझ है आप पर, वो ये है कि आप एक हीरो हो, आप एक नायक हो, आप एक सेवियर हो, आप एक मिसाया हो। आप ही की वजह से 40 लोगों, फिर 41 लोगों के जान बच गया है। इसलिए आपके बच्चे, देश के बच्चे, वो पूछेंगे आपसे, जब भी आप मिलेंगे कहीं बाहर में, आपके गांव में, आपके शहर में, वो पूछेंगे कि क्या हुआ था, आपने कैसे किया था। मैं मानता हूं कि आप अपने बच्चों के इस काम में नहीं लगाना चाहते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जब कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने ये इतना बढ़िया, खतरनाक और वीर काम किया है, तो आप क्या बताएंगे? मैं एक ही बात कहूंगा, बेटे कहीं ऐसा मौका आए तो वहां जाना, नहीं तो और कोई काम का भी करना मत, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि एक आदमी के 40 आदमी के चक्कर में एक आदमी चले जाते दिक्कत नहीं होती, क्योंकि 40 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, 41 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, उनकी माँ भी, भाई भी, बहन भी, बच्चे भी। एक आदमी के पीछे कोई नहीं होता है, 2 बच्चे होते हैं, वो पल जाते हैं। जैसे मैं पला इस दुनिया में, सर मैं माफी चाहता हूँ। मुन्ना भाई, हम आपको सलाम करते हैं, हम बिल्कुल आपकी बात समझ सकते हैं। हम ये बातचीत अभी इसी वक्त खत्म करेंगे, क्योंकि मैं देश को दिखाना चाहता था मुन्ना भाई कि जो वीर इंसान है, जो ये काम किया था, उसके पीछे क्या है, क्या कहानी है, क्या बोलना चाहते हैं सरकार को,
क्या दिखाना चाहते हैं, और जो आपने दिल की बात बोली है यहाँ पे पूरा देश सुन चुका है, पूरा देश सुन रहा है। और इसलिए मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे आपको एक सलाम करके मैं खत्म करना चाहता हूं। मैं वकील भाई से एक दो सवाल करूंगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूं कि जो इंसानियत, जो ह्यूमैनिटी आपने दिखाया है आज, और अगर मैंने कुछ गलत सवाल किया हो तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपका जो कहानी है, आपका जो काम है मुन्ना भाई, फर्ज बनता, मैं सिर्फ देश को दिखाना चाहता हूं। वकील भाई जी, मुन्ना भाई काफी इमोशनल हो गए हो, जो हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक खतरनाक काम है, ये एक खतरनाक काम है। कभी भी जान जा सकती है इस कार्य में वकील भाई, और इसलिए शायद मुन्ना भाई इस इंटरव्यू में काफी इमोशनल हो चुके हैं। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या आप सब लोग जो इस कार्य में हैं ऐसे ही फील करते हैं वकील भाई? सर एक्चुअली आपने अभी बोला था कि 2-4 दिन के बाद ये सब चीजें इधर उधर हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई और ऐसी चीज आ जाएगी कि हमें भूल जाएंगे, बट हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसने जो अभी एक्सप्लेन किया हमारे काम के बारे में, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। हमारे काम बड़ा टफ और बड़ा रिस्की है सर, और इतना इसमें ऐसा होता है सर, हम काम भी करते हैं तो कहीं तो हमें पैसे आधे मिलते हैं, कहीं मिलते नहीं, कहीं बेईमानी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है सर कि हम सरवाइव करना हम लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। और मैंने ये सोचा था, ये मैसेज मैं दूंगा कि मैं पीएम सर से बोलूंगा, पीएम साहब से बोलूंगा कि हमारे देश के जो मजदूर है सर, वे दिन ब दिन दबे कुचले जा रहे हैं। एक तो काम नहीं है सर, और जो काम करते हैं तो सर उन्हें पैसे सही से नहीं मिल पाते। तो सब लोग कर रहे हैं सर, लेकिन सबके लिए आप सोचिए, आप इतना कर रहे हैं देश के लिए, देश इतनी तेजी से आगे जा रहा है कि कभी नहीं है सर, बट थोड़ा आप मजदूर के लिए भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। वकील भाई मैं ये बताऊंगा कि मजदूर के पेट में आग लगती है ना सर, वो जिंदगी और मौत नहीं देखता। जी जी बोलिए वकील भाई, हम सुन रहे हैं आपकी बात, बोलिए। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ सर, जब मजदूर के पेट में और बच्चे के पेट में आग लगती है ना सर, वो जिंदगी और मौत नहीं देखता, उसे जो काम मिलता है सर वो करता है, सब ठीक है करता। और जब कुछ मिलता ही नहीं फिर उसे वो भी करना पड़ता है जहाँ उसे देख रहा है कि हाँ मेरे ऊपर मिट्टी गिर के मेरी टांग भी टूट सकती है, मैं मर भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो सर मैं हाथ जोड़ के पीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, जो हमारे भारत देश के बहुत सारे मजदूर है सर, बहुत सारे मजदूर है सर, उनकी तरफ ध्यान दीजिए प्लीज, और उनकी उत्थान के लिए सर कुछ काम कीजिए प्लीज। वकील भाई ये राष्ट्र निर्माण जो सर इंडिया ना सिर्फ सरकार मजदूर के कंधे पे बढ़ रहा है सर, ना सिर्फ सरकार लेकिन पूरा देश आपकी बात सुन चुका है इस शो पर लाइव। ये शो बिल्कुल लाइव है, और सारे जो बातें कही आपने और मुन्ना भाई ने, देश ने सुना है, सरकार ने सुना है। और जैसे मैं एक पत्रकार हूं और मैं ही बोल रहा हूं कि मीडिया का ध्यान हट जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन मैं एक वादा करता हूं इसी शो पर वकील भाई और मुन्ना भाई कि आपने जो कहा है, आपने जो परेशानियों के बारे में बताया है इस शो पर, हम उसको हाईलाइट करेंगे, हम उसको पहुंचाएंगे सरकार के पास, और हम एक प्लेज एक्सट्रैक्ट करेंगे सरकार से कि जो भी आपने हाईलाइट किया है उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा वादा है, एक पत्रकार होने के नाते मैं एक वादा करता हूं आपको कि हम इसको हाईलाइट करते ही रहेंगे। मुन्ना भाई और वकील भाई, फिर से मैं आपको सलाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, मैं बहुत प्राउड हूं आपसे बात करने के लिए, ये मेरे लिए एक प्रिविलेज भी था। मैं आपको सलाम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं 41 सब निकल गया। That was Munna Bhai and Vakil Hassan, 2 of the 12 rat miners, live here on India Today, letting their hearts show. I didn't mean to make Munna Bhai cry, and I wish I hadn't, but that is the reality of what their reality is. And I wanted him to show it. He told you he doesn't want his children to join rat hole mining. And let me tell you a little bit more about rat hole mining and why it is banned in parts of this country. The reason is because it is dangerous for miners.
Rat hole mining is perilous. It's very, very perilous for miners. Miners oftentimes lack adequate protective gear and they can be asphyxiated. There are many occasions, especially in the northeast, where children have been used as rat hole miners. The mines don't have any safety measures to speak of. They lack ventilation and structural support. The process involves environmental concerns oftentimes, causes deforestation, soil erosion, etc. There are a huge number of cases reported where casualties have taken place, deaths. The National Green Tribunal has banned the practice in 2014 in Meghalaya. I want to bring in our legal head, Nalini Sharma, for more on this story. Nalini, you know, we've just had a very, very emotional interaction with two rat hole miners, who let their hearts show. They were called in to do something that machines had failed to do. They truly are heroes. But as you've been reporting, rat hole mining has been controversial, it's been banned, it's been, at the very least frowned upon in the larger quest for infrastructure development. Where do things stand right now, and what would be the fate of rat hole miners like Munna and Vakil after this tunnel rescue is over? Well, Shiv, first and foremost, a big salute to not just Munna and Vakil, but their entire team, who's worked tirelessly and ensured that those 41 workers were eventually rescued. But just to bring in a little bit of context first, rat hole mining was most popular in Meghalaya. In India, it also happens in parts of Jharkhand and Chhattisgarh. But because it's primarily related to mining in coal mines, is why it's most popular in Meghalaya. And back in 2013, there were 30 miners who had actually gotten trapped, out of which 15 of them actually lost their lives, after which the Guwahati High Court had taken note of the matter. They'd taken cognizance of the matter and eventually transferred the matter to the National Green Tribunal in Kolkata. In 2013, the first temporary ban was imposed by the NGT on rat hole mining in Meghalaya with respect to coal mines, and that ban was reimposed once again in 2014. And what the NGT had said at that time was that rat hole mining was unscientific, it was unregulated, and that is why it was necessary to ensure that, especially where all of this illegal mining is going on, rat hole mining is absolutely not permitted. But just last week, there was a report filed by the court-appointed committee saying that rat hole mining is still very much prevalent in Meghalaya. It's still happening. Of course, it's got nothing to do with what happened in Uttarkashi, but it's important to understand the context. And just last week, they had submitted a report saying illegal rat hole mining is still happening in Meghalaya. And keeping that in mind, the hearing before the NGT is going to be tomorrow. The reason why the NGT had banned it, Shiv, specifically, was because it was dangerous, it was extremely risky, and there were many fatalities that were happening during this entire process. Nalini, thanks very much for that perspective. Important to give our viewers that reality check on rat hole mining that is being hailed at this point of time. I'm going to keep that promise as far as exploring and investigating further what can be done for these workers. Can there be a purer form of joy than finally realizing that your loved one who was hanging between life and death is finally going to be in your arms again in just a matter of hours? All of these families, viewer, have spent the last 17 days sleepless, anxious, possibly even getting ready for the worst case scenario and getting used to life without a loved one. 17 days is a terribly long time for parents, for siblings, for children, some of them just infants and toddlers, some of them old enough to know that their father is inside a collapsed tunnel somewhere and may not make it out alive. But look at their faces yesterday and today. Some of them are still in shock because they don't even want to dare to smile until their loved one is in their arms again. Some of them are gleeful, they're lighting diyas, they're bursting firecrackers, they're distributing laddus. This is joy that cannot be faked. This is joy that cannot be staged. This is joy that cannot be simulated. This is the joy of the ghar wapsi of a loved one. Watch this report. It
It was a dark Diwali for 41 families as the Silkyara tunnel collapsed on 12th of November, trapping workers inside. "17 days later, the light is back in their lives. As the workers walked out of the tunnel safely, many celebrated the Diwali they could not, setting off fireworks, exchanging sweets. The families have spent the last 2 weeks praying. दिन सोते हैं तो रात को न, रात सोते हैं तो दिन को न, ऐसे मरने ने बुलाते थे, उसी पर में ध्यान। हाँ, उसी पर में ध्यान लगते थे कि कब से कब बेटा देखेंगे, कब से कब बेटा निकलेंगे कहीं। And now preparations are on to welcome their loved ones. हम रोज दिन दुआ मांगत रही ऊपर वाला के बढ़िया से निकलावे बहुत अच्छा लगा। एखने इतना बाहर आए के तो बात कर दिले तो इतना अच्छा लगा, मन खुश हो गया। The administration is making arrangements for the rescued workers to return once they are medically cleared. A grand homecoming awaits the 41 workers. Bureau Report, India Today. And the Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, perhaps the one with the most amount of pressure, who was there since late last night, ensuring that these people made it out and got a warm hug as soon as they left that tunnel. Here he is in exclusive and detailed conversation with India Today's Rahul Kanwal. To talk about this 17-day-long, 400-hour-plus rescue operation, we're joined on India Today television, live and exclusive from Dehradun by the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami. Dhami साहब, स्वागत है आपका इंडिया टुडे टेलीविजन पर और हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से, हमारे न्यूज़ रूम की तरफ से आपको, आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद कि उन 41 श्रमिकों को आप बाहर निकालने में सफल रहे। पूरे देश की नज़र हमारे कैमरों के जरिए उन 41 वर्कर्स पर थी और आखिरकार बहुत मेहनत के साथ आपने उनको बाहर निकाला। काफी बड़ी रिलीफ होगी आपके लिए, राहत की सांस आपने ली होगी, क्योंकि आपकी भी जान कहीं ना कहीं टंगी होगी इस बात पे कि वो सुरक्षित निकल पाते हैं या नहीं। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जब हमारे 41 श्रमिक भाई लगातार कई दिनों से सोलन के अंदर थे, तो ये बहुत कठिन स्थिति थी हम लोगों के लिए भी, उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं इसका सीधे सीधे असर हर चीज़ पर पड़ता था, क्योंकि बीच में त्योहारों का सीजन भी था। लोग दीपावली के दिन घर आना चाहते थे और दीपावली के दिन घर ना आकर वो टनल के अंदर बंद हो गए हैं। इस दौरान दिवाली भी आई, इस दौरान छठ पूजा भी आई, इगास का कार्यक्रम भी था, इगास का उत्सव भी था, देव दिवाली थी, गुरु पर्व था, अनेकों, गंगा स्नान था, सभी त्योहार इस दौरान पड़े। और ऐसे में क्योंकि राज्य का भी काम था, उसको भी चलाना था, साथ में हमारे परिवारजन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे में फंसे हों तो कैसे, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि बड़ी परेशानी भी थी और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी था। और रेस्क्यू जैसा जैसा हम समझ रहे थे कि बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले दिन से जब हमने सोचा था कि इसमें मलबा हटाया जाएगा तो आराम से हम लोगों तक पहुंच जाएंगे, जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। ऊपर से भी और ज्यादा भूस्खलन होने लगा, वो भी खतरा हो गया। फिर पाइप डालने का काम हुआ, पाइप भी जो है कुछ दूरी तक गई और उसके बाद पाइप भी अटक गई। उसके बाद आगर मशीन लाई गई और आगर मशीन से भी काम हुआ और कुछ सीमा के बाद वो भी पूरी तरह से अटक गई। और 16 तारीख को एकदम से जो है अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई, जब ऊपर से भी जो है मलबा गिरने लगा, वाइब्रेशन होने लगा और मजदूर
जो काम कर रहे थे उनको निकालने का, रेस्क्यू का, उनके ऊपर भी खतरा हो गया कि ऊपर से कुछ गिर न जाए। और मशीन भी बंद हो गई, तो वो बहुत कठिन समय था। उसके बाद फिर से प्रयास किया गया, फिर मशीन आगे बढ़ी, 34 मीटर पर जाकर फिर मशीन रुक गई। तो वो पूरा जो प्रोसेस था, वो पूरी प्रक्रिया सब लोगों ने बहुत गौर से देखी, क्योंकि पल पल की खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो हादसा हुआ उससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने और देश की सरकार ने क्या सबक सीखा आपके हिसाब से, जब आप इसको पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि अब सारे 41 वर्कर्स बाहर लाए जा चुके हैं, चूक कहां पे हुई और अगर ऐसा ना हो दोबारा उसके लिए क्या हमें फिर बदल करना पड़ेगा रोड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स में, टनलिंग की टेक्निक्स में, उसके बारे में बताइए। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने वो सारे एफर्ट्स और वो सारा निर्देशन, उनका मार्गदर्शन लगातार हमको मिलता रहा। और सारी जो भी टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरे देश भर की, चाहे वो हैदराबाद से आनी हो, चाहे उड़ीसा से आनी हो, या आंध्र से आनी हो, या इंदौर से आनी हो, कहीं से भी देश के किसी भी कोने से हमको कोई उपकरण लाने थे या कोई मशीनें लानी थी, चाहे उनको एयरलिफ्ट करना था, वो सब हमको मिला, जो कदापि उनके बिना संभव नहीं था। और उन्होंने प्रत्येक दिन जिस प्रकार से इस पूरे रेस्क्यू अभियान की स्वयं जो है मॉनिटरिंग की, स्वयं देखा और पल पल की जानकारी प्रत्येक दिन लेते थे। जानते हैं आपकी इस दौरान जब से ये 12 तारीख से ये रेस्क्यू अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कई दिन तो दिन में 2 बार 3 बार भी वो इसकी जानकारी लेते थे, और किसी भी चीज की कभी उन्होंने कमी यहाँ पर नहीं होने दी। ये बहुत बड़ा काम था। इसके साथ साथ बीच में उन्होंने ये सारे जो भारत सरकार ने इसको सेफ्टी के आदेश कर दिए हैं, सबका सेफ्टी ऑडिट होगा जैसे भी जहां भी टनल वर्क चल रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर हमने, चूंकि टनल का काम काफी जगह पर हो रहा है और ये हमारे लिए सुविधाजनक भी है, इससे बहुत सारा जो कठिनाइयां हैं, दूरियां हैं, वह भी कम हो रही हैं। और इस टनल के बनने से भी लगभग 25 किलोमीटर की बड़कोट से सिलक्यारा तक की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। तो निश्चित रूप से टनल बनने भी जरूरी हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए हमने कहा है कि चूंकि ज्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं उसको राज्य सरकार के स्तर पर काम नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार उन सबकी समीक्षा करेगी, जिससे कि हम विकास के साथ साथ सुरक्षा भी लोगों की सुनिश्चित कर पाएंगे। नहीं, आपने देखा होगा कई सारे जियोलॉजिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो कि हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से जुड़े, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा 4 धाम 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जो माउंटेन रेंज है बहुत यंग है, यहाँ पे अरावली से विपरीत जो पहाड़ हैं वो अभी भी बन रहे हैं, इस वजह से वहां की जो रेत है, जो पत्थर हैं, वो बड़े लूज हैं, वो फिसल जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। आप सेफ्टी ऑडिट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज दोबारा ना हो, उसके बारे में आप कैसे सोच रहे हैं, ताकि ये तो बड़ा ही एक तरीके से किस्मत की बात रही कि सारे के सारे बाहर निकल आए, वरना बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती थी। तो उस पे आप अपनी टीम को फिलहाल मुख्यमंत्री साहब क्या आदेश दे रहे हैं, कैसे उस बारे में आप सोच रहे हैं? हमने पहले ही आदेश कर दिया है कि जितने भी टनल के काम चल रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत जगह पर टनल बन रही हैं, उन सभी की हम समीक्षा करेंगे एक बार, और पूरी विधिवत समीक्षा करेंगे, जिससे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो। अच्छा, साथ ही साथ ये बताएं कि जब परिवार वालों से आपने चर्चा की, आपने इन वर्कर से चर्चा की, उनकी मेंटल स्टेट के बारे में बताएं, क्योंकि जब बाकी देशों में इस तरह का, थाईलैंड में या बाकी देशों में इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तो काफी ये रहा कि जो उनके दिमाग में चल रहा था, एक्सपर्ट्स को चिंता कर रहे थे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है, इनको ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि काफी दिन तक फंसे हुए थे एक क्लोज स्पेस में। लेकिन जब ये निकले तो काफी लग रहा था, इनका मोरल भी हाई था, जोश भी हाई था, और इनकी जो मेडिकल स्थिति थी वो भी डॉक्टर बता रहे थे कि काफी ठीक थी। देखिए, एक तो लगातार मैंने उनसे, जब सबसे पहले जो सबसे छोटे वर्कर थे 20 साल की आयु के, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपको क्या महसूस हो रहा था, चिंता हो रही थी क्या ज्यादा? बोले नहीं, जब आपका प्रधानमंत्री जी का सबका ये हुआ कि हमारी वो चिंता कर रहे हैं, और मैं भी लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन में था, तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन चिंता हुई, लेकिन उसके बाद हमको लगा कि हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप हमको बाहर निकाल लेंगे, और हम निश्चिंत थे। हमने सबने जो है ठीक प्रकार से वहां पर अपना समय जो है व्यतीत किया,
और खाद्य सामग्री इत्यादि लगातार अंदर पहुंच रही थी, पानी भी पहुंच रहा था, अन्य जो जरूरत की चीजें हैं वो भी पहुंच रही थी। बाद में वहां पर कुछ उनको मनोरंजन इत्यादि जो छोटा मोटा कर सकते थे वो भी उन्होंने किया है, मतलब कि आपस में खेल कर, आपस में किसी प्रकार से वो कागज के वो बनाकर, तो उस प्रकार से उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। और आपने देखा होगा कि जो रेस्क्यू अभियान था, जिसको हम सोच रहे थे कि ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पाइप के अंदर जाने के बाद, टनल में अंदर प्रवेश करने के बाद 2.5-3 घंटे लगेगा, और ये मान के मैं चल रहा था कि 8 बजे शुरू हुआ है तो 10:30 बजे तक या 11 बजे तक खत्म होगा, क्योंकि 5 से 7 मिनट का हमने एवरेज एक का लगाया था कि एक को आने में इतना टाइम लगेगा। लेकिन पहली बार में 4 आए, और उसके बाद अगले मैं सोच रहा था कि 15-20 मिनट में और 4 आएंगे, वो 4 नहीं, 4 की जगह 11 आ गए एकदम से। फिर अगली बार फिर 10 से ज्यादा आ गए। तो मैंने एकदम से पूछा कि कितने लोग आ गए अभी तक, तो उन्होंने कहा 37 लोग आ गए। मैं सबका इंतजार कर रहा था, तो मैंने कहा 37 कैसे आ गए एकदम? बोले साहब वो जितने लोगों के लिए आपने ट्रॉली और स्ट्रेचर पाइप के अंदर बनाया हुआ था, उन्होंने किसी ने उसका उपयोग ही नहीं करा, वो सब स्वस्थ हैं और उन्होंने फटाफट क्रोलिंग किया और एकदम से बाहर निकल कर आ गए, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। उसके बाद मैं सबसे एक से मिला, उनके परिजनों से मिला, और सब कल उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे बात की और वो अति प्रसन्न थे। और आज मैं सबसे हॉस्पिटल में भी मिलने गया, सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से। उनके परिजन भी पूरी तरह से कहीं उनको कोई इस प्रकार की परेशानी नहीं है। जो लोग अपने जो यहाँ नहीं आ पाए, जिनके परिजन, उन्होंने सभी ने दूरभाष पर बात कर ली है। सभी के घरों में एक त्योहार जैसा, उत्सव जैसा माहौल है भगवान की कृपा से। आज सभी लोग सकुशल आ गए हैं।